Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good Good evening, sir. evening, all. Good evening. Today, I want to discuss some questions from your literature. I hope every students are ready to reply my questions. Whatever I Yes, sir. have taught you guys, listen Yes, to me sir. carefully. Let me explain. Whatever I have taught you guys, uh, from every chapter, I will ask questions uh, according to your preparation, according to your in the view of your examination. We have to prepare for that, and I have uh, to ask the question from related chapters. Whatever I have taught you according to your syllabus, that we have to discuss together here. I will ask the questions, you have to reply. uh, in message box you have to give the answer whatever I will ask. Is that clear what I'm telling you all? Ye- yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very good. Yes. uh, Yes, sir. today I would like to okay today I would like to discuss from first chapter, we are related to God. I will want even a single question. I won't leave from this chapter, and you guys have to complete this properly. If you get any kinds of confusion, you must ask me so that you can prepare for your examination. And it's golden opportunity for you all as well. आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका ये है कि आप इतने बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकोगे कि आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होंगे एग्जाम में। सिंगल क्वेश्चन भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। और उसके लिए मैं एक चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूँ, एक तरह से रिवीजन हो जाएंगे, सो दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम्हारा एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, जो दिसंबर फ्रॉम 7 दिसंबर से जो एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हो, फॉर दैट यू गाइस हैव टू प्रिपेयर। आप लोग को उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो रेडी है आप लोग सभी गाइज? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Is my voice is clear? Yes, 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 sir. 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 Yes. Very good. Are you listening me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Who is the author of A Letter to God? First question for you guys. Give answer in message box so that I can watch that. Tell me. Reply first.
in message box. Who is the author of A Letter to God? Hurry up. 5 seconds. Questions. A letter. Who is author of A Letter to God? 5 second times you are given to answer the question. Good. More student reply fast. After 10 or 15 minutes after the explanation of this chapter, we will go for some grammar chapters as well. इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग 10-15 मिनट डिस्कस इस चैप्टर को करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रामर चैप्टर की ओर और एवरीडे ये चलेंगे आपके एग्जाम तक. मोर स्टूडेंट मोर स्टूडेंट मोर स्टूडेंट. सर ऑथर मतलब ऑथर का मतलब नहीं समझ में आ रहा. ओके लेटर आई एक्सप्लेन दैट. मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा उसको. ठीक है, आप लोग लिखते चलो जो जो आंसर लिख रहे हो. Till now, 1 student, 2, 3, 4. Okay, fine. 4 students have answered correct. 4 students सही आंसर दिए हैं. In that, first student is Santoshi Kumari, Muskan Kumari. Then after Preeti is here, Rajesh is here. These 4 students replied fine. Question was that question ये था कि ये लेटर टू गॉड का लेखक कौन है. Is that clear? चलिए, first question is completed. Now next question for you guys. Next question for you guys. Listen to me carefully. अब लोग ध्यान से सुनोगे. Who was Lencho? 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 Very nice. Most of us students have replied the answer correct. Very good, very good. Lencho was a farmer. Very good. Very good. Most of students have replied correct answer. Next question. Lencho's house was question. Listen to me carefully. Was situated in. Lencho's house was situated in. Lencho's house was situated in. Reply the answer. Lencho's house was situated in. Very good. Very good. All the most of the students have replied correct answer. Very good. लेंचोज का घर कहाँ था? तो इंटायर वैली में था, है ना, टॉप ऑफ द हिल और लॉ और ऑफ ए लॉ हिल. दैट्स करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन is goes to you guys. How much money did Lencho ask to God? How much money did Lencho ask for God? How much money did Lencho ask for God? Very good. This is easy for everyone. Good. Next question. Lencho had a single hop. That was. Next question for you guys. Lencho had
a single hop. That was Lencho had a single hop. That was very nice, very good. Wow, very good. बहुत अच्छा। लेंचू को एक ही आशा था, वो था गॉड। बहुत ही अच्छा आंसर दियो, चलो कोई इशू नहीं, आप लोग अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यू गाइज, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट फ्रॉम पोस्टमैन? हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट फ्रॉम पोस्टमैन? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। 70 pesos, 70 pesos. Next question, very good, most of the student have replied correct. Next question, try to reply all the students, कोशिश करो सभी स्टूडेंट रिप्लाई करने का, so that you can revise a single question from the chapter a letter to God, and you won't get any problems ever in your examination. So guys, must be careful, be serious while I'm asking the question. Next question is for you guys. Next question for you all guys. What did Lencho call the employees of post office? What did Lencho call? What did Lencho call the employees of post office? What did Lencho call the employees of post office? Try. Confusing question, but you can answer this. थोड़ा सा try. Next, continue, try to answer. क्वेश्चन मैं हिंदी में समझा देता हूँ सर भाई। ये हिंदी में समझ गए हैं, बट हाँ, ये नहीं जान रहे हैं कि उसको क्या बुलाता था, मतलब इसका फर्स्ट ही होगा ऑप्शन में। वेट, मैं ये बात पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन इज हियर, लेंचो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या कहा है? स्टोरी के अंत में व्हाट डिड ही कॉल? Okay, fine. We'll try. He had called bunch of crooks, bunch of crooks, bunch of crooks, Crook. bunch of crooks. So must remember these guys. These 4 or 5 questions are important. I hope you won't have any difficulty to reply the answer of these questions from these chapters, because you have studied this better. And one more question I would like to ask. How much money did postmaster? How much money did postmaster uh, give? How much money did postmaster give to Lencho from his salary? From his salary. From his salary. Very good.
पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इट मीन्स आधा, पूरे सैलरी का 50%, इट मीन्स 50% करेक्ट आंसर. And most of a student had replied this, not 70 pesos. The student, those who have replied 70 pesos, that is not correct. 70% not. So very nice. Most of a student have replied 50 pesos. Who read the letter? Next question. Who read the letter? Who read the letter? Who read the letter? More student reply. More student reply. Very good. Postmaster will be correct answer. The postman had studied or read only the envelope, but letter was read by postmaster. So postmaster will be correct answer. Very nice. Well tried. बहुत सुंदर. Postmaster will be, कोई इशू नहीं, अच्छा प्रयास किया everyone. One more and last question from this chapter. Then after we will go for further. What did totally destroy Oplencho? What did totally destroy Oplencho? What did totally destroy Oplencho? In English, not in Hindi answer. Ji, correct. Very good. Wow. Very nice. Corn. His corns of his field was totally destroyed. Corn. Corn. Assis, your answer is not correct. Just improve that. Write in word, not in symbol. Just try to write in word. सर मिस्टेक से Improve चला गया that. सर. Improve that. सर मिस्टेक से चला गया सर, लिख रहे थे. मैं सुन, ठीक है, सुन लिया मैं. Over or I should ask more question? क्वेश्चन इस चैप्टर से बंद करूं या और भी पूछूं? पूछिए सर. और पूछ लीजिए सर. एक क्वेश्चन और बता दो मुझे. Lencho has compared the drops of rain. Lencho has compares the drops of rain. The big drops were like. The big drops were like. Answer. The big drops were like. Very good, very good. 10 cent pieces. Very nice. And a smaller watch, a small ones, and a small ones, a small ones. Good, very nice. A small ones was 5 cent pieces. Very nice. Most of important questions you guys have completed. So I hope you won't have any problem. You want to get any problem from this chapter, and I will want we have to complete such a way every day one chapter. Is that clear? Yes sir. यदि समय को नहीं करते हो तो that would be not good for you all guys.
ये आप लोग के लिए अच्छा नहीं होगा और आप लोग इस प्रीशियस टाइम को जरूर यूज करोगे क्योंकि एग्जामिनेशन तुम्हारा नजदीक है और मैं तुम्हारा एग्जामिनेशन बेटर फ्यूचर के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए मेहनत करूँ और इसीलिए मैं अभी आप लोग का रिक्वेस्ट के बाद इस क्लास को रखा हूँ। इज दैट क्लियर? तो यस आप सर। लोग इसको यूज करेंगे। आई होप एवरीवन विल यूज दिस, सभी लोग इसको यूज करेंगे और समझेंगे। तो मैं अभी कुछ एक चैप्टर से मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्रॉम ग्रामर। मैं ग्रामर से एक चैप्टर करता हूँ, एक चैप्टर लिटरेचर, एक चैप्टर ग्रामर। एवरीडे ये चलेंगे आपके एग्जामिनेशन तक और मैं चाहूंगा कि एवरी स्टूडेंट 100/100 इंग्लिश में लाओ एंड इट वुड बी बेटर फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ये आप लोग का उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा होगा और मेरे लिए भी गर्व की बात होगी कि मेरा बच्चे लोग बेहतरीन स्टडी कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहूंगा। मॉडल पर मैं डिस्कस करता हूँ, हाँ उसका मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, सभी को ध्यान से देखेंगे। हाँ जी सर, लेट्स सी। दिख रहा है आप लोग को कुछ? यस सर। Yes, गुड, sir. ओके फाइन, वेरी गुड। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। मैं कुछ एक एक्सरसाइज मैं लिखता हूँ, देता हूँ आप लोग को, दैट यू हैव टू सॉल्व। उसको सॉल्व करना है और उस इशू पर डिस्कस करेंगे कि आप लोग को प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज सॉल्व करने में किस प्रकार से है। क्या आप उसका यूज को समझ पा रहे हो जो मैं पढ़ाया हूँ और उस एक्सरसाइज को इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हो? तो दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ मे, कैन, शुड एंड मस्ट। आर यू लुकिंग अराउंड? दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. यस सर। गुड, वेरी नाइस। क्वेश्चन, oh sorry, question, question first I'm writing here blank, second question, third questions,
for question. Now listen to me carefully. I hope you can understand the questions. क्लियर नहीं लिख रहे हैं, चूंकि पेन नहीं है, उंगली से लिखना पड़ रहा है. मैं पेन को यूज करूंगा नेक्स्ट टाइम से. लेट्स सी. क्वेश्चन फर्स्ट है ब्लैंक. यू पास द एग्जामिनेशन. इज दैट क्लियर? सेकेंड है स्टूडेंट रिस्पेक्ट एल्डर्स. आपके पास नोटबुक है तो नोट कर सकते हो उसको. वी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. एंड 4 है राम ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप लोग इसको नोट करके यू नोट ऑन इन नोटबुक एंड सॉल्व इट एंड रिप्लाई द आंसर वन बाय वन. हरी अप. सर आंसर without भेजें? taking time. Yes, you can answer this. Yes, sir. Brilliant. Next student. Next student. Next student. Next student. Do fast. थोड़ा जल्दी करेंगे, समय ज्यादा नहीं लेंगे. Okay, fine. First question is here. Listen to me carefully. Blank, you pass the examination. First में the student, those who fill up may, it is correct. जो may भरे हुए correct है, exclamatory sign भी आप लोग देखोगे. This was wish or desire, what I have taught you. विश और डिजायर आप लोग को बताए थे कि जब किसी विश किया जाता है, कामना किया जाता है, तो इन दैट कंडीशन मे का प्रयोग किया जाता है और मे यहाँ ऐसी स्थिति में यूज होंगे. जो मे भरे हुए दैट इज करेक्ट. स्टूडेंट्स ब्लैंक रिस्पेक्ट एल्डर्स. भाई इसमें शुड भी यूज करेंगे और मस्ट भी यूज कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. बट यहाँ थर्ड यूज के अनुसार, थर्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड यूज, सेकेंड में शुड बी मोस्ट रिलेवेंट. सेकेंड शुड जो है ज्यादा रिलेवेंट है. स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स. विद्यार्थियों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए. थर्ड है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. ये हमारा मॉरल ड्यूटी है, भारत का नागरिक है, हमारी नैतिकता है कि भाई हम भारत का तिरंगा को सम्मान करें. और ये बिल्कुल हमारी मॉरलिटी को शो करता है. और मस्ट इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर दिस यूज, जो मैं तुम लोग को बताया अभी. और लगभग स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है.
एक स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ, कोई बात नहीं, वो लिटिल कंफ्यूजन है, उसको सुधार लेगा राजेश। नेक्स्ट है राम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एबिलिटी को शो कर रहा है, यहाँ कैन करेंगे। अब मैं ये क्वेश्चंस आप लोग से राइज करना चाहता हूं कि आपने सही बनाया है, सही बनाया है क्या? ये आपने एक समझ गए हो कि ये इसमें होना चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन आपने किया और आपने भर दिया, या फिर आपने जो यूज को पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका रियल रीजन को जाना तब बनाया? ये मैं जानना चाहता हूँ कि रीजन को जानने के बाद आपने आंसर दिया या ऐसे मार दिया और हो सकता है मिस्टेक से सही सारा हो गया हो। तो ऐसा में से नहीं ना है, आप लोग रीजन को जान करके बनाए हो। यस सर। Yes, sir. ऑल द स्टूडेंट टेल मी रिप्लाई। आप लोग रीजन को समझ के बना पा रहे हो या किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो यू गाइस आस्क मी, आप पूछ सकते हो मुझे, सो दैट यू वॉन्ट गेट कंफ्यूजन ईवर, है ना, ताकि भविष्य में आपको कंफ्यूजन ना हो। सो यू विल हैव टू आस्क राइट नाउ। आप लोग अभी पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क नाउ। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। नो सर। No, sir. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप लोग काफी ब्रिलियंट। अब हम लोग एक क्वेश्चंस और पे चले आते हैं, थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं परीक्षा में पूछने का। मैं एक ही चैप्टर आज डिस्कस कर रहा हूँ, मॉडल से ही रिलेटेड, ठीक है, 1 चैप्टर 1 डे। थोड़ा सा मैं और डिस्कस डेप्थ में जाना चाहता हूँ। चलो इसमें एक यूज मैं जानना चाहता हूँ, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, राइट। समटाइम्स इट इज आस्क इन योर एग्जामिनेशन, कभी कभी ये तुम्हारा परीक्षा में पूछता है। अब मैं इसका क्वेश्चंस को नोट डाउन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, we go to a school daily. Second question, Ram now you guys answer these questions. Hurry up.
However, hurry up. Do fast. All the student reply. Deepak, uncompleted answer. You have to complete this. Incomplete answer you have replied. Okay, fine. Most of the student have replied correct answer. Very good. Most of the student have replied correct answer. चलो, बहुत सारे स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है. अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आप अपना देख लो. बी वी के साथ यहाँ एक कंप्लीमेंट्री जो है एक नेसेसरी है और एक कंपलसरी भी है हमारे लिए कि वी के साथ हम लोग या तो हैव टू यूज करेंगे या तो हैड टू यूज करेंगे. ये बिल्कुल कंपलसरी है. इट्स कंपलसरी. भाई तो यहाँ हैड टू नहीं यूज होंगे इस कंडीशन में कि रोज की बात किया जा रहा है, तो प्रेजेंट में हम लोग यूज करेंगे हैव टू. ये वेरी सिंपल है. दिमाग को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना. राम ब्लैंक क्लीन आवर क्लास स्टडी. राम को कल हम लोग का क्लास साफ करना था. स्टडी ना, यहाँ स्टडी इंडिकेट कर रहा है पास्ट एंड हियर इज हैड टू. उसके लिए यहाँ हैड टू है. उसके बाद मदर है सिंगुलर. सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब. हैज टू. प्लूरल के साथ प्लूरल. ये हम लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे. तो वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर, आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपने जो यूज बनाते हो या जो मैं अभी मैं बनाया, तो आप रीजन के साथ बनाते हो या ऐसा ही आप अपना कॉमन सेंस लगाते हो और हो सकता है मिस्टेक से सही हो जाता है? ये चीज मैं जानना चाहता हूँ. बाय द वे आप लोग रीजन के साथ बनाते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पूरे लाइफ टाइम आप लोग कभी नहीं भूलोगे और ये तुम्हारे कैरियर के लिए पार्ट एंड पार्सल हो जाएंगे. एंड दैट वुड बी बेटर फॉर यू guys and your English will be better also. So you have to think yourself that how you are taking this, कैसे आप कर रहे हो. And I hope the student those who are replying this answer they have the certain reason behind it. उन लोग को एकदम आंसर जो दे रहे हैं रीजन के साथ दे रहे हैं. एंड इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट्स. और ये मेरे लिए भी अच्छा है और आप लोग के लिए भी अच्छा है कि रीजन के साथ यदि देते हो, आप इसका रीजन को जानना चाहते हो, देखते हो, पता करते हो और फिर आंसर देते हो, तो दैट इज बेटर फॉर यू ऑल गाइस. बहुत अच्छा. आप लोग बहुत अच्छा पकड़ लिए हो. और अभी जैसे मैंने मॉडल में 4 यूज दिया था, वो 4 यूज को भी बेहतरीन तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लिए हो. तो ये श्योर करता हूं मैं तुम लोग को कि आपको परीक्षा में एक भी मॉडल नहीं छूटेंगे. मैं तो सारा मॉडल बता ही दिया हूँ, बट 4 भी बेहतरीन तरीके से सभी यूजेज कंप्लीट कर लिए हो तो आपका एक भी मॉडल परीक्षा में नहीं पूछेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस एग्जाम में. तो भाई आपको सपोज दैट 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मॉडल भी अच्छे तरीके से जानते हो और 3 मॉडल भी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपका. तो अच्छा है. गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. और आप लोग ऐसे करते जाओगे तो एक सप्ताह में आप लोग का रिवीजन हो जाएगा सारे ग्रामर चैप्टर्स व्हाट आई हैव टॉट यू, जो तुम लोग को मैं पढ़ाया हूँ. सेक्शन ए में कुछ कुछ बचे हुए हैं ग्रामर चैप्टर में पढ़ाने, बट सेक्शन बी और सी में मोस्ट ऑफ ग्रामर चैप्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड एक्सेप्ट क्लॉज को छोड़ करके. तो आई थिंक मैं सेकेंड टर्म का भी तुम लोग को पढ़ा दिया हूँ जी. सर मस्ट हल्का बता दीजिए. मस्ट क्या बता दूं उसमें, बोलो, आस्क मी क्वेश्चन. उसका समझ में यूज नहीं आ रहा है सर. कोई बात नहीं, तुम उसको नोट डाउन करो, ठीक है. और कल क्लास में लेते आना 5 मिनट में. सबसे पहले उसी को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे का क्लास करेंगे. तुम्हारा जितना कंफ्यूजन उसको नोट डाउन करेगा नोटबुक में, है ना. और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि आप लोग को और भी सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, और भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल जी.
जी राजेश, आई नो दैट, मुझे पता है, वो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ सेक्शन बी और सी में। तुम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हो, इसलिए थोड़ा फास्ट करो, वो मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। सेक्शन ए में ही वो चैप्टर बचा हुआ है, बी और सी में कंप्लीट हो चुके हैं। Yes, sir.